Okay, today we'll start with the first chapter, like from chemistry 1, that is chemical thermodynamics. It is one of the very important chapter. Okay, 1 minute. Okay, now here in this case, first we'll see what is the meaning of thermodynamics. So I just write the definition of thermodynamics here. Thermodynamics here. What is thermodynamics? It is concerned with energy changes in physical and chemical transformation. It is concerned with the energy changes in physical and chemical transformation. Means what? Now first we'll see here what is the meaning of physical change and what is the meaning of chemical change. Like for example, if you say here we are having a water we are having in the solid state, and we can convert the water into liquid state. So here this change, what we written here, this is called as a physical change. This change is called as a physical change. See, we are having water here in the with state, solid state, and we are converting water into liquid state. So to convert this water from solid state to liquid state, we require some energy. So what is the amount of energy required? How much amount of energy required? The study of that will do in thermodynamics. Or you can say, suppose for example, we are having water which is in the liquid state, and we are going to convert the water into gaseous state. Here, see, in the beginning also we have a water, here also we have a water, so this is also called as a physical change. But to convert water from liquid to gas, we also required some energy, correct? We also required some energy, and therefore that how much energy we require, the study of that energy is come under the branch of thermodynamics. Now I'll take one example of chemical thermodynamics here. Suppose we are having carbon in the solid state combined with oxygen which is in the gaseous state and will convert into carbon dioxide. So we are having carbon in the solid state plus oxygen in the gaseous state will convert into carbon dioxide into gaseous state, and here this is called as a chemical change. But now here when this change occur, means when carbon will convert to carbon dioxide, some heat is involved in it. Some heat is involved in it. Correct? Heat is involved in the process, or some energy change will occur. Some energy change will occur. That means when I convert carbon to carbon dioxide, some energy will be changed, some heat will be evolved, or maybe heat will be absorbed, or some energy change will occur. The study of that, in study of the energy changes during chemical process, are called as thermodynamics. So what is thermodynamics? It is concerned with energy changes in physical and chemical transformation. मतलब जब भी हम लोग कुछ फिजिकल चेंज करेंगे या जब भी हम लोग कुछ केमिकल चेंज करेंगे, तो ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज सम एनर्जी चेंज विल ऑकर, and the study of that energy changes during a process are called as a thermodynamics. I'll repeat again. What is thermodynamics? It is concerned with the energy changes in physical and chemical transformation. मतलब कुछ भी फिजिकल चेंज करो या कुछ भी केमिकल चेंज करो, no, physical changes are temporary, chemical changes are permanent. But whether it is a physical change or whether it is a chemical change,
Now when this change would occur, some energy is involved in it. मतलब energy may evolve, energy may absorb, and study of that energy is called as a thermodynamics. Okay. Now these are the things we are going to study. Now we'll see what are the limitation of what are the limitation of thermodynamics. थर्मोडायनामिक्स के अंदर limitations क्या है, मतलब यहाँ पे क्या स्टडी कर सकते हैं और हम लोग क्या स्टडी नहीं कर सकते, वो हमें देखना है. सबसे पहले मतलब सी ऑलवेज इन थर्मोडायनामिक्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द इट गिव्स importance to initial state and final state. मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनिशियल स्टेट इंपॉर्टेंट है और फाइनल स्टेट इंपॉर्टेंट. मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन स्टार्ट हुआ और रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन एंड एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है. दैट इज इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स. तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है फिर यहाँ पे, द इंपॉर्टेंस नहीं है, इट डज नॉट deals it does not deals with rate of reaction. It does not deals with the rate of reaction. Rate of reaction means what, कि हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ और रिएक्शन खत्म हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन रिएक्शन का स्पीड क्या है, मतलब रिएक्शन कौन से स्पीड से जा रही है, रिएक्शन स्लो है, रिएक्शन फास्ट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इट डज नॉट डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन. थर्ड, it does not deals with mechanism of reaction. It does not deals with mechanism of the reaction. और mechanism मतलब reaction exactly कैसे हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कार्बन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसे कन्वर्जन के लिए कितने स्टेप्स लग रहे हैं, या ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट. मतलब मैकेनिज्म नॉट इम्पोर्टेंट. मतलब रिएक्शन हो रहा है इतना ठीक है कि रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन कैसे हो रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. So it does not deal with the mechanism of the reaction. Okay. And last one more point I'll write down here. It does not deals with does not deal with it does not deals with microscopic properties, but it deals with matter. It deals with the matter if it is in bulk and deals with macroscopic properties. Okay, so here it does not deal with the microscopic. Microscopic मतलब कि अगले लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कार्बन को जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन्स है, इसके हमें इसके बारे में हम लोग बॉदर नहीं करेंगे. मतलब कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कैसे आ रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इट डज नॉट डील विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, बट इट डील्स विद द मैटर इफ इट इज इन द बल्क. मतलब हमारा जो मैटर जो रहेगा
मतलब जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, दैट मैटर हैज टू बी इन द लार्ज क्वांटिटी। मतलब हमें कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्टडी करनी है तो हमारे पास जो भी अमाउंट होगा, द अमाउंट हैज टू बी इन द लार्ज क्वांटिटी। मतलब हम लोग अगर हमारे पास मतलब ड्रॉप ऑफ वाटर है तो उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, बट वी कैन स्टडी अबाउट द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। मतलब हमें जब थर्मोडायनामिक स्टडी करना होगा तो हमारा जो मैटर है, द मैटर हैज टू बी इन द लार्ज क्वांटिटी, इट शुड नॉट बी इन द स्मॉल क्वांटिटी। और अगर हमारा मैटर लार्ज क्वांटिटी में रहेगा तो मैटर के हम लोग कौन से प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मीन्स व्हाट? आई जस्ट 1 मिनट। मतलब अगर हमारे पास मैटर अगर बल्क में है, बल्क मतलब द मैटर इज प्रेजेंट इन द मैटर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। और अगर हमारे पास मैटर लार्ज क्वांटिटी में है तो हम लोग मैटर के बारे में क्या स्टडी कर सकते हैं? हम लोग मैटर के मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं। मीन्स वी कैन स्टडी द मैक्रोस्कोपिक। नाउ मैक्रोस्कोपिक मीन्स व्हाट? कि सपोज फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ बीकर एंड इन अ बीकर वी हैव टेकन अ वाटर। यहाँ पे जो वाटर लिया हुआ है, हम लोग वाटर का मतलब यहाँ पे वाटर का अमाउंट कितना है वो मेजर कर सकते हैं, एंड वी नो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज मोल। देन वी कैन स्टडी द प्रेशर ऑफ द वाटर, we can measure temperature of the water, we can measure volume ऑफ वाटर। मतलब ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग वाटर के स्टडी कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक। करेक्ट। सो यहाँ पे मतलब हम लोग जब थर्मोडायनामिक्स के बारे में स्टडी करना होगा तो सबसे पहले हमारा जो मैटर होगा वो कैसे होना चाहिए? इट शुड बी इन द बल्क। बल्क मीन्स इट शुड बी इन द लार्ज क्वांटिटी, and then only we can study about the macroscopic properties such as how much water amount of water is there, what is the pressure of the water, what is the temperature of the water, what is the volume of the water. So all these properties we can study. So I'll just revise the starting part once again. What is thermodynamics? Definition you have given it. Thermodynamic is concerned with the energy changes in फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है या अगर हमारे पास कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो ड्यूरिंग दिस चेंजेस some energy may get evolved, some energy may get absorbed, and the study of that is done in thermodynamics. In thermodynamics we'll say what are limitations, what we are going to study and what we are not going to study here. See, what is the first one? That thermodynamics gives importance to the initial state and the final state। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हमारे लिए खाली इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। इट इज नॉट डीलिंग विद द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे रिएक्शन का स्पीड क्या रहेगा, हमारा रिएक्शन स्लो रहेगा, हमारा रिएक्शन फास्ट रहेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। थर्ड, इट डज नॉट डील विद द मैकेनिज्म। मतलब रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्ट, it does not deal with the microscopic property। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि वहाँ पे एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट डील्स विद द मैटर इफ इट इज इन द बल्क। मतलब हमारे पास जो मैटर है वो मैटर कैसा होना चाहिए? बल्क। बल्क मतलब थर्मोडायनामिक्स का जो हम लोग स्टडी करेंगे तो हमारा मैटर हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए, और अगर हमारा मैटर लार्ज क्वांटिटी में रहेगा तो ही उसके प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वी कॉल देम एज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके। एंड लाइक फॉर एग्जांपल विच आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? देखो यहाँ पे अगर हमारा मैटर बल्क में है मतलब लार्ज क्वांटिटी में है तो हम लोग उसके कौन कौन से प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं? तो मैटर मतलब यहाँ पे वाटर इज देयर इन द बीकर, तो वाटर का अमाउंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब कितना मोल ऑफ वाटर है, वाटर के ऊपर कितना प्रेशर है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके। सो वी हैव डन विद व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स and we have done with the limitation of thermodynamics. Now I'm going to for the next part, the common term
used in द कॉमन टर्म यूज्ड इन थर्मो, मतलब कौन कौन से टर्म्स है जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में बार बार यूज करने वाले हैं। ओके, कौन कौन से टर्म्स है तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। द कॉमन टर्म यूज इन द थर्मोडायनामिक्स आर, द फर्स्ट very common term I can say here, a very common we can use here, two terms we use. The first one is a system and second one is surrounding. The first common term is the system and second common term is surrounding. And what is that? See here, suppose for example, like I'll take here, we are having here water in the beaker. So this is a beaker, or here inside the beaker we have taken the water. Okay, so what happened here, water जो हम यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वाटर का क्या मेजर कर सकते हैं कि अमाउंट कितना है, और मतलब हाउ मच ग्राम ऑफ द वाटर या हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द वाटर वी आर हैविंग. Similarly, we can measure temperature of the water. We can also measure what is pressure there on the water or pressure of the water. मतलब ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग वाटर के बारे में मेजर कर सकते हैं. तो जो पार्ट और जिसके प्रॉपर्टी हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट पार्ट आर कॉल्ड एज अ सिस्टम. दैट पार्ट आर कॉल्ड एज सिस्टम, मतलब जो पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन अंडर है. मतलब हम लोग क्या क्या बीकर में वाटर लिया हुआ है और वाटर का हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, अमाउंट स्टडी कर रहे हैं. वाटर का मास कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, वाटर का प्रेशर कितना है, वाटर के सारे प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं. तो जो पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन अंडर है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टम. सो जस्ट राइट डेफिनेट सिस्टम, अ पार्ट ऑफ universe which is under thermodynamic consideration. मतलब जो पार्ट, मतलब यूनिवर्स का, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा कंप्लीट ऐसा यूनिवर्स है, ये कंप्लीट ऐसा यूनिवर्स है, तो पूरे यूनिवर्स में से ये जो पानी, जो मतलब बीकर के अंदर जो पानी है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन, मतलब जो पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पार्ट के बारे में मैं स्टडी कर सकता हूँ, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. करेक्ट, मतलब जो पार्ट यूनिवर्स के अंडर है, मतलब यूनिवर्स के अंडर ही है लेकिन जिसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड ए सिस्टम. सो व्हाट इज सिस्टम? अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन, मतलब जो पार्ट मेरे ऑब्जर्वेशन अंडर है, जिस पार्ट का टेम्परेचर कितना है, जिस पार्ट का प्रेशर कितना है, अमाउंट कितना है, मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सारे प्रॉपर्टीज में अगर मेजर कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. करेक्ट. देन हियर, अभी ये बीकर का जो बाहर का पार्ट है, मतलब देखो ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जो पार्ट मेरे ऑब्जर्वेशन अंडर है उसे मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम बोलूंगा. और जो पार्ट मेरे ऑब्जर्वेशन अंडर नहीं है, मतलब ये बाहर का पार्ट, मतलब इट इज ऑल्सो, देखो ये सराउंडिंग है, ये पार्ट भी यूनिवर्स का ही है बट इट इज नॉट अंडर माई ऑब्जर्वेशन, so it is called as surrounding. So what is surrounding here? I'll write surrounding, a part of universe, a part of universe other than system are called सराउंडिंग. मतलब ये सिस्टम है, तो सिस्टम के अलावा जो भी भाग पार्ट यहाँ पे जो बच रहा है, दैट रिमेनिंग पार्ट आउटसाइड द सिस्टम आर कॉल्ड एज द सराउंडिंग. करेक्ट. मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या बोलना है कि जो पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन अंडर है, जो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. और जो पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन अंडर नहीं है बट यूनिवर्स का ही पार्ट है,
and that part is called as a surrounding. Correct? Now I'll take one more example here. Suppose for example, here लाइक हमारा क्लासरूम है, ये अगर हमारा क्लासरूम है और ये हमारा पूरा बिल्डिंग है, मतलब जहाँ पे हमारा क्लास चल रहा है, तो ये हमारा बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग है, तो आई कैन से द कंप्लीट बिल्डिंग कैन बी कॉल्ड एज अ यूनिवर्स। कंप्लीट बिल्डिंग कैन बी कॉल्ड एज अ यूनिवर्स। और बिल्डिंग के अंदर ये हमारा क्लासरूम है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लासरूम के अंदर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मतलब हमें कोई बोलेगा कि हमारे क्लासरूम का वॉल्यूम कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्लासरूम में हम लोग डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, क्लासरूम का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। क्लासरूम में हम तुम्हें बोल सकते हैं कि शांत बैठो, मतलब हम लोग क्लासरूम हमारे कंट्रोल है। तो अगर एक क्लासरूम हमारे कंट्रोल के अंदर है, क्लासरूम के प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो क्लासरूम कैन बी कॉल्ड एज अ सिस्टम। मतलब इन दिस बिल्डिंग द क्लासरूम इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, तो क्लासरूम कैन बी कॉल्ड एज अ सिस्टम। और एक बिल्डिंग का ही भाग, लेकिन जो क्लासरूम के अलावा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अदर देन द क्लासरूम आर कॉल्ड एज अ surrounding. So what is system? A part of the building which is under our observation are called as a classroom, and the part of the building which is other than classroom are called as a surrounding. Now I'll take one more example. Suppose I can say, suppose you are working in a lab. हम लोग लैब में कुछ काम करें. For example, you have kept water for heating. मतलब तुम लैब में काम कर रहे हो और तुमने क्या किया, लैब में वो काम करते हो, लैब में पानी गर्म करने के लिए रख दिया। तो लैब में जो पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, वाटर गर्म हो रहा है, तो वाटर की तुम लोग क्या स्टडी करोगे, वाटर का टेम्परेचर कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, वाटर का अमाउंट कितना है, तो वाटर के सारे प्रॉपर्टी तुम स्टडी करोगे। तो जो बीकर के अंदर जो वाटर रखा हुआ है, दैट पार्ट ऑफ द वाटर कैन बी कॉल्ड एज अ सिस्टम। लेकिन अभी लैब में तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम्हारे टीचर्स है, बहुत सारे लोग हैं, तो बाकी का पार्ट अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट अदर पार्ट ऑफ द लैब कैन बी कॉल्ड एज सराउंडिंग। तुम जिस टेबल पे काम कर रहे हो और जो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने रखा गया है, दैट पार्ट कैन बी कॉल्ड एज अ सिस्टम। लेकिन लैब का जो बाकी का भाग है, जो अभी तुम्हारे ऑब्जर्वेशन अंडर नहीं है, दैट पार्ट कैन बी कॉल्ड एज अ surrounding. That part can be called as a surrounding. Correct? So again, I'll repeat. What is system then? A part of the universe which is under our observation or which is under thermodynamic consideration, yeah, which is important to us are called as system. और जो पार्ट यूनिवर्स का ही है लेकिन सिस्टम के अलावा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स other than the system are called as a surrounding. So these are the common term we are going to use in the thermodynamics. What is system? I'll repeat. A part of the universe which is under thermodynamic consideration. A part of the universe which is under thermodynamic consideration are called as a system, and a part of the universe only but other than the system are called as a surroundings. ये दो टर्म हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में बार बार यूज करेंगे. एक टर्म है जो सिस्टम, मतलब द पार्ट विच इज अंडर आवर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन, and surrounding the part of the universe but other than the system are called as a surrounding. Okay, now I'll go for the next part now. Yes, I'm just going for the next part here, that is types of system. टाइप्स ऑफ सिस्टम. अभी हमारे पास तीन टाइप्स के सिस्टम्स है.
The first type is called as the open system. Second is called as a closed system. And third is called as a isolated system. So we have three systems here. The first one is called as the open system. Second one is called as a closed system. And third one is called as the isolated system. So we'll explain one by one. First, I will take open system. I'll just share the book with you all and I'll show you the example of open system. One minute. See here, diagram is shown. They have given the example of the open system. I'll just show it to you all. This is the example for open system. Second one is the example for closed system. And third is the example for isolated system. Now you can see difference in the three example. First beaker, they have kept the hot coffee in an open cup. Here, open cup. Second, they have kept the hot coffee in the cup, but cup is covered with the saucer. Okay, and third one, they have kept the coffee in the cup. Cup is covered with the saucer, and then they have kept in the insulated vessel. Insulated है मतलब in short, सबसे पहले वाले कप में गर्म कॉफी रखा है लेकिन कप ओपन है. दूसरे वाले में गर्म कॉफी रखा हुआ है लेकिन कप को बंद कर दिया है. और तीसरे वाले डायग्राम में क्या किया है, कप को बंद कर दिया है, कॉफी अंदर है, गर्म है और ऊपर से और इंसुलेटेड वेसल भी लगा के रखा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्री एग्जांपल we are having three system: open system, closed system and isolated system. Okay, so first I'll start with open system. Okay, I'll start with open system. I'll explain once again. 1 minute. Yes, open system, I'll just take the example. The hot coffee is kept in open cup. Hot coffee is kept in open cup. मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास कप है और ये हमारा सॉसर है, but the cup is open. Okay, so hot coffee is kept in the open cup. मतलब यहाँ के कप के अंदर कॉफी है. Coffee is hot coffee या टी भी बोल सकते हो. So either we can have hot coffee or we can have a hot tea is kept, but cup is open. Now since cup is open and coffee is hot, after some time what happen? The hot coffee will become cold. So मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? Hot coffee is becoming cold. मतलब from the coffee the heat is released or heat is given out. Heat is given out. मतलब यहाँ से heat बाहर जा रहा है. Correct. और दूसरा, कॉफी गर्म है तो यहाँ से वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं. वेपर्स फॉर्म हो रहा है और ये वेपर्स बाहर जा रहे हैं. वेपर्स बाहर जा रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है? मैटर मतलब यहाँ पे कॉफी था बट कॉफी के वेपर्स बाहर जा रहे हैं. बाहर जा रहे हैं मतलब कॉफी के मैटर कम हो रहा है. तो अंदर जो कप के अंदर हमारा कॉफी था उसका अमाउंट स्लाइटली कम हो जाएगा बिकॉज कॉफी इज गेटिंग वेपराइज. तो मैटर भी चेंज हो रहा है. और दूसरी बात, यहाँ पे जो कप कॉफी है, कॉफी कैन बी कॉल्ड एज अ सिस्टम. अ कॉफी इन द कप कैन बी कॉल्ड एज सिस्टम. और ये जो बाहर का पार्ट है कॉफी के
कप के बाहर का जो पार्ट है, दैट आउटसाइड पार्ट कैन बी कॉल्ड एज अ सराउंडिंग. आउटसाइड पार्ट कैन बी कॉल्ड एज अ सराउंडिंग. करेक्ट. तो इसका मतलब कप के अंदर जो कॉफी है वो हमारे लिए सिस्टम है, और कॉफी कप के बाहर का जो भी पार्ट हमारे है वो सराउंडिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब चाय और कॉफी ठंडा हो जाएगा तो उससे एनर्जी बाहर आ रहा है. एनर्जी बाहर आ रहा है मतलब क्या, एक्सचेंज हो रहा है, हीट. और दूसरा, कॉफी के वेपर्स बाहर जा रहे हैं. बाहर किसके पास जा रहे हैं, सराउंडिंग के पास जा रहे हैं. तो यहाँ पे मैटर भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी भी चेंज हो रहा है और मैटर भी चेंज हो रहा है. सच सिस्टम आर कॉल्ड एज व्हाट, ओपन सिस्टम. सो व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम मतलब it exchange it exchange energy and matter with surrounding. It exchange energy and matter with surrounding. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉफी गर्म था वो ठंडा हो रहा है, मतलब कॉफी का एनर्जी बाहर जा रहा है. बाहर किसके पास जा रहा है, सराउंडिंग के पास जा रहा है. कॉफी वेपराइज हो रहा है, मतलब कॉफी के वेपर्स बाहर जा रहे हैं. बाहर कहाँ पे जा रहे हैं, सराउंडिंग के पास जा रहे हैं. मतलब सिस्टम का एनर्जी और सिस्टम का मैटर सराउंडिंग के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड energy of the system and matter are exchanging with surrounding, then such system can be called as the open system. So what is open system? It exchange energy and matter with surrounding. Okay, तो ये एग्जांपल है. मतलब व्हाट इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम? हॉट कॉफी इज केप्ट इन द कप. मतलब यहाँ पे एनर्जी भी चेंज हो रहा है और मैटर. अगर दूसरा और मतलब ऐसे भी हो सकता है, कभी अगर देखो चाय ठंडा है तो उसको अगर गर्म करोगे तो गर्म भी हो जाएगा. तो गर्म हो जाए मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सराउंडिंग एनर्जी दे रहा है कॉफी को. मतलब अगर कॉफी गर्म करना चाहते हो तो गर्म भी हो जाएगा. और जब ओके, तो ये भी पॉसिबल है, मतलब दोनों तरह से पॉसिबल है. मतलब यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एंड मैटर both are getting exchange. So what is open system? System which exchange both energy and matter with surrounding are called as the open system. मैं अभी क्लोज सिस्टम का एग्जांपल लेता हूं तो थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो आई जस्ट गो फॉर द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम. 1 minute. क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम. Now what is closed system here? Closed system is, I'll take the example here. The hot coffee kept in a cup, and cup is covered with, hot coffee is kept in the cover and the cup is covered with a saucer. Saucer, correct? The hot coffee is kept in the cup and cup is covered with saucer. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा कप है, इसके अंदर हमने हॉट कॉफी रखा हुआ है, कॉफी रखा हुआ है, एंड इट इज कवर विथ सॉस. मतलब ऊपर से कवर करके रखा है, कवर करके रखा है. तो अभी क्या होगा, हॉट कॉफी है, हॉट कॉफी है, बट आफ्टर सम टाइम it will become cold. The hot coffee will become cold after, hot coffee will become cold after some time. तो hot coffee will become cold after some time. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, energy is getting exchange with surrounding. मतलब जो hot coffee है, the hot coffee will become cold. मतलब कॉफी हॉट कोल्ड हो रहा है, मतलब हॉट इज बिकमिंग कोल्ड, मतलब कॉफी से एनर्जी बाहर जा रहा है एंड एनर्जी इज गेटिंग एक्सचेंज. एंड एनर्जी के साथ एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी इज गेटिंग एक्सचेंज विद
सराउंडिंग, मतलब ये कॉफी गर्म है, गर्म कॉफी ठंडा हो रहा है, मतलब कॉफी से हीट बाहर आ रहा है, और हीट बाहर है और हीट किसको मिल रहा है, सराउंडिंग में, मतलब यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे वेसल क्लोज है, तो अंदर का वेपर्स बाहर नहीं जाएगा, मतलब वेपर्स फॉर्म हो रहा है लेकिन वेपर्स आर नॉट गोइंग आउटसाइड, या बाहर के वेपर्स अंदर नहीं आ रहे, तो वेपर्स बाहर नहीं जा रहे, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, बट नो मैटर, नो मैटर इज गेटिंग एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर्स बाहर नहीं जा रहे, या बाहर के वेपर्स अंदर नहीं आ रहे, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, खाली क्या एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी मतलब अगर कॉफी गर्म था तो कॉफी ठंडा हो जाएगा, करेक्ट, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन अंदर के जो वेपर्स है वो वेपर्स बाहर नहीं आ रहे, वेपर्स बाहर नहीं आ रहे, मतलब मैटर इज नॉट गेटिंग एक्सचेंज। सो व्हाट इज क्लोज सिस्टम, द सिस्टम इन विच, the system in which only energy exchange with surrounding and not मैटर, मतलब जहां पे खाली एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम। सो व्हाट इज क्लोज सिस्टम, द सिस्टम in which only energy exchange with the surrounding and not matter are called as a closed system, correct? So अगर मैं दोनों में डिफरेंस बताना चाहता हूँ तो एक दोनों क्लियर हो जाएगा। देखो ओपन सिस्टम में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कॉफी गर्म था तो कॉफी ठंडा हो रहा है, मतलब क्या एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा कप ओपन है इसलिए मैटर, मतलब वेपर्स बाहर जा रहे हैं, मतलब क्या एक्सचेंज हो रहा है, मैटर। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, इट एक्सचेंज बोथ, इट एक्सचेंज both energy and matter with surrounding, correct, are called as open system। and in closed system क्या हो रहा है, देखो in closed system it exchange only energy and not matter with the surrounding are called as a closed system। अभी हमारा थर्ड सिस्टम है, the third system is called as a isolated system। and here I'll just give you the example here, the hot coffee kept in thermos flask, hot coffee is kept, hot coffee is kept in thermos flask। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल थर्मास फ्लास्क है, थर्मास फ्लास्क, दिस इज thermos flask and thermos flask are called as a insulated vessel, thermos flask are called as a insulated मतलब कैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अंदर हॉट कॉफी या हॉट टी और कॉफी कुछ भी रखा हुआ है तो हॉट विल रिमेन हॉट, मतलब कॉफी जो हॉट है हॉट ही रहेगा, और अगर अंदर वेपर्स फॉर्म हो रहे तो वेपर्स बाहर भी नहीं आ रहे, मतलब टी विल रिमेन हॉट, मतलब एनर्जी इज नॉट गेटिंग एक्सचेंज, एंड मैटर अंदर जो वेपर्स फॉर्म हो रहे वेपर्स भी बाहर नहीं आ रहे तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम in which neither matter nor energy exchange with surrounding, the system in which neither matter nor energy exchange with the surrounding। क्योंकि क्या हो रहा है, थर्मास फ्लास्क है,
अगर थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर हम लोग गर्म चाय रखेंगे तो गर्म ही रहेगा, मतलब एटलीस्ट 4-5 आवर्स तक गर्म ही रहेगा, मतलब अंदर का हीट एनर्जी बाहर नहीं आ रहा है, या बाहर का भी एनर्जी अंदर नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और वेसल क्लोज है, थर्मस फ्लास्क क्लोज है, तो अंदर का मैटर भी बाहर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैटर भी, मतलब अंदर का मैटर बाहर नहीं आ रहा है, बाहर का मैटर अंदर नहीं आ रहा है, तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो सच सिस्टम आर कॉल्ड एज अ isolated system. What is isolated system? A system in which neither matter nor energy is exchanged, neither matter nor energy is exchanged with the surrounding are called as a one minute, are called as a isolated system. ओके, तो हमने 3 एग्जांपल देखे। कौन कौन से 3 एग्जांपल देखे? सबसे पहला वाला हमारा एग्जाम सिस्टम था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या बोलते हैं हम लोग कि देयर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। व्हाट इज क्लोज सिस्टम? यहाँ पे कब हमारा क्लोज था तो खाली एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा था, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम। एंड व्हाट इज आइसोलेटेड? आइसोलेटेड मतलब हमने एग्जांपल थर्मस फ्लास्क का दिया था, अंदर जो कॉफी गर्म है वो गर्म ही रहेगा, तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब अंदर का ये सिस्टम हमारा है, सिस्टम का एनर्जी बाहर सराउंडिंग में नहीं जा रहा है। और यहाँ पे हमारे वेपर्स है, लेकिन वेपर सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सचेंज कुछ भी नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? द सिस्टम इन विच देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग, मतलब कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये हमारे 3 सिस्टम है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ एंड देन आई विल गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज ओपन सिस्टम? इट एक्सचेंज energy, it exchange both energy and matter with surrounding. And what is the example we gave? Hot coffee is kept in the open cup. Then closed system, the system in which only energy is exchanged with the surrounding and not the matter. An example क्या दिया था यहाँ पे? Hot coffee is kept in the cup but the cup is covered with the saucer. और तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोलेटेड में, हियर द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। एग्जाम्पल क्या दिया था यहाँ पे? हॉट कॉफी इज केप्ट इन द थर्मास फ्लास्क। तो ये हमारे 3 टाइप के सिस्टम है। तो सिस्टम मतलब क्या? आगे मैं रिपीट, सिस्टम मतलब जो पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन अंडर है दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सिस्टम, जो पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन अंडर है दैट कैन बी कॉल्ड एज सिस्टम। और हमारे पास 3 सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? which can exchange energy and matter both with the surrounding. What is closed system? Which can exchange only energy and not matter with the surrounding. And isolated system which neither exchange energy nor matter with the surrounding are called as a isolated system. Okay, and now I'm just moving on the last part, that is, 1 minute, I'll just change the page. Yes, the next heading I'm having over here is properties of system. Properties of system. Now system has got 2 properties. The first property is called as a extensive property, and second property are called as a intensive प्रॉपर्टी। तो हमारे पास 2 टाइप की प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल स्टडी अबाउट द एक्सटेंसिव। Extensive. What is extensive properties here? Suppose for example the property which depends on the
amount of matter, the property which depends on the amount of matter present in the system. The property which depends on the amount of matter present in the system. मतलब जो property amount के ऊपर depend करेंगे, जो property amount के ऊपर depend करेंगे, that property are called as a extensive property. Amount के ऊपर depend करेंगे, how much amount of matter we are having. Like for example, see here, suppose we are having a first beaker, and in that first beaker I have taken here 100, or I guess I have taken here 180 ml of water. Then I'm having a second beaker here, and in the second beaker here we have taken 1800 ml of water. मतलब पहले बीकर में भी मैंने वाटर लिया है, सेकेंड बीकर में भी मैंने वाटर ही लिया है, बट ओनली थिंग व्हाट हैपन हियर आई हैव टेकन लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड हियर आई हैव टेकन मोर अमाउंट ऑफ वाटर. तो अभी कैसे होगा, देखो वाटर कम है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम देखूंगा तो वॉल्यूम कितना रहेगा वाटर का, द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 180 ml मिलीलीटर, और यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम कितना रहेगा 1800 मिलीलीटर. अगर मैं यहाँ पे मास मेजर करूंगा मास, तो यहाँ पे वाटर का मास रहेगा 180 ग्राम, और यहाँ पे जो वाटर है उसका मास रहेगा 1800 ग्राम. देन उसके बाद अगर मैं एनर्जी मेजर करूंगा, वाटर का एनर्जी अगर मैं मेजर करूंगा एनर्जी, तो हियर द वाटर विल हैव द लेस एनर्जी, एंड बिकॉज द अमाउंट ऑफ द वाटर इज मोर, द वाटर विल हैव द मोर एनर्जी. मतलब बेसिकली मुझे क्या बोलना है यहाँ पे, अगर मैं अभी मोल्स भी करूंगा मोल, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास. वाटर का मास कितना है हमारे पास यहाँ पे 180 है, वाटर का मोलार मास कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10. और यहाँ पे मैं अगर मोल्स कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास. व्हाट इज द मास 1800 ग्राम, मोलार मास 18, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 100 मोल. तो यहाँ पे अमाउंट कम था इसलिए मोल भी कम है, और यहाँ पे अमाउंट ज्यादा था इसलिए मोल्स भी ज्यादा है. तो मुझे क्या बोलना, देखो since since we have taken less amount of water, we are having less volume, we are having less mass, water is having less energy, and water is having less number of moles. And in the second beaker we are having more amount of water, so more volume, more mass, more energy and more number of moles. मतलब ये जो प्रॉपर्टी हो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वी आर हैविंग, अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब अगर हमारे पास वाटर का अमाउंट कम रहेगा, अगर हमारे पास वाटर का अमाउंट कम रहेगा तो सारे प्रॉपर्टीज कम रहेंगे, लेस रहेंगे. लेकिन अगर हमारे पास वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो हमारे पास सारे प्रॉपर्टी ज्यादा रहेंगे. तो जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, such property are called as the extensive property. So I'll just repeat again. What is extensive property? Property of the system which depends on the amount of matter present in the system. मतलब जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, कितना अमाउंट लिया, अगर कम अमाउंट लिया रहेगा तो सारे प्रॉपर्टीज के वैल्यूज भी कम रहेंगे, अगर ज्यादा मैटर लिया रहेगा तो सारे मैटर की प्रॉपर्टीज भी ज्यादा रहेंगी. तो जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब एक्सटेंसिव कौन कौन से एग्जांपल है, तो आई जस्ट राइट डाउन example of extensive property, and example of the extensive properties are like mass. यहाँ पे हमने देखा है कि mass, volume, internal energy, heat, capacity, and last number of mole. मतलब ये mass, volume, internal energy, heat capacity and number of mole, all these properties are extensive property. All these properties are extensive property. What is extensive property?
डेफिनेशन एक बार वापस देखो, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन amount of matter present in the system. The property which depends on amount of matter in the system are called as the extensive property. If you have less amount of water, all the values are going to be the less. If you are having more amount of the water, then all the properties are going to be more. And therefore, which are the extensive property? The extensive properties are mass, volume, internal energy, heat capacity, and number of moles. So ये हमारे extensive properties है. Now I'll go on the second heading here. The next heading is intensive property. Okay, so I'll just go for the intensive property. Intensive property क्या होता है? So I'll just write here on the paper. That is 1 minute. Yeah, so I'm just having here the next example, that is intensive properties. Now what is intensive properties? Now again I'll take the same example. Suppose I have taken the first beaker. In the first beaker we have taken, again I will say, we have taken 180 ml of water. Second beaker here, but in which we have taken 1800 ml of water. So first beaker we have taken less amount of water, and second beaker we have taken more amount of water. Correct? First beaker we are having less amount of water, second beaker we are having more amount of water. Now here, if I want to say the boiling point of this water, the boiling point of this water अगर मैंने मेजर कर दिया, तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मुझे कितना मिलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे भी मैं बोला कि नहीं, मुझे यहाँ पे भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो यहाँ पे भी मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना मिलेगा? द बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी 100 डिग्री सेल्सियस. तो देखो, वी आर हैविंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर, हियर वी आर हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, here we are having less amount of water, and here we are having more amount of water. So because we are having less amount of water और more amount of water, लेकिन देखो दोनों का boiling point तो सेम ही है. ऐसा हुआ क्या कि वाटर कम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम, और वाटर ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? ऐसा नहीं हुआ. दोनों का वाटर मतलब वाटर ही है. वन बीकर इज हैविंग लेस वाटर, वन बीकर इज हैविंग मोर वाटर, बट द बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स द सेम. सिमिलरली मैं देखूंगा डेंसिटी. वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml. और यहाँ पे भी अगर मैं डेंसिटी वाटर का मेजर करूंगा, तो यहाँ पे भी डेंसिटी कितना होगा? 1 ग्राम पर ml. मतलब डेंसिटी अमाउंट लेस है बट डेंसिटी, और अमाउंट मोर है बट डेंसिटी रिमेन्स द सेम. मतलब ये डेंसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. लेकिन अगर दूसरी बात मैं देखूं, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट से अच्छा मैं बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट. अगर ये वाटर मैंने यहाँ पे लिया तो वाटर कितने में फ्रीज होगा? वाटर विल फ्रीज एट 0 डिग्री. और यहाँ पे भी वाटर अगर हमारे पास है तो वाटर कितने में फ्रीज होगा? 0 डिग्री. तो वेदर वी हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर और वेदर वी हैव द मोर अमाउंट ऑफ द वाटर, बट द फ्रीजिंग पॉइंट रिमेन द सेम. मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है, that does not depend on amount of water. So what is intensive property? Intensive property मतलब property which does not depend on amount of water. The property which does not depends on amount of water, or you can say amount of matter. मतलब जो प्रॉपर्टी हमारे मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब मैटर का अमाउंट कितना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, सच प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिव वर्ड ही इंडिकेट करता है. इंटेंसिव का मतलब होगा इंडिपेंडेंट. इंटेंसिव का मतलब होगा इंडिपेंडेंट. मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, वेदर वी हैव लेस अमाउंट ऑफ मैटर और वेदर वी हैव द मोर अमाउंट ऑफ द मैटर, बट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल रिमेन द सेम. देखो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दोनों का डेंसिटी सेम है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम है. सो प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर आर कॉल्ड एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फिर इंटेंसिव के एग्जांपल कौन से होते हैं? तो इंटेंसिव के एग्जांपल अगर हम लोग लेके जाएंगे तो इंटेंसिटी का एग्जांपल आएगा प्रेशर, then we'll have the example of temperature,
surface tension, melting point, boiling point, and specific heat. ये जो properties है, they are called as a intensive property. What is intensive property? Intensive property means what? Intensive property means any property which does not depends on amount of matter. मतलब जो property matter के ऊपर depend नहीं करते, they are called as intensive property. देखो water का amount कम था, यहाँ पे water का amount ज़्यादा था, but सारे properties के value same थे. And so which are the example here? The pressure, temperature, surface tension, melting point, boiling point, specific heat, और भी यहाँ पे है, that is viscosity. ये जो सारे प्रॉपर्टी है, all these properties are called as the intensive property. So I'll just repeat here what we have seen. हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया? देखो यहाँ पे हमारे सिस्टम के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था. सिस्टम का प्रॉपर्टीज कौन सा था? सिस्टम के पास दो प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. What is extensive property? The property whose value does depends on amount of matter are called as the extensive property. And what is intensive property? Property whose value does not depend on amount of matter are called as the intensive property. मतलब हमारे पास matter कितना भी होने दो, but the value of the property will not change, so they are called as the intensive property. Now normally in the exam they give all the properties together, and among the property they ask us to identify which of the following are the intensive property and which of the following are the extensive property. So एक बार वापस देखो, what is extensive property? The property which depends on amount of matter are called as extensive. And what are the example of the extensive property? Mass, volume, internal energy, heat capacity, and number of moles. What is intensive property? Intensive property मतलब any property which does not depends on amount of matter are called as the intensive property. And examples are pressure, temperature, surface tension, melting point, boiling point, specific heat, and viscosity. All these are called as the intensive property. So hopefully the difference between the extensive and intensive is very clear. I'll repeat one more time. The property which depends on amount of matter are called as the extensive, and property which does not depend on amount of matter are called as intensive. तुम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, I stand for independent. Independent मतलब does not depends on matter. Okay, तो today what we have seen, हमने सबसे पहले देखा था कि what is thermodynamics. सेकेंड पॉइंट में देखा था थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस क्या होते हैं. सेकेंड पॉइंट में क्या देखा था? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. में हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं बार बार, एक है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग. फिर हम लोगों ने देखा था हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम्स है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम है. और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि हमारे सिस्टम के दो प्रॉपर्टीज है. द प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ओके, so with this we'll stop here, and the remaining part of the intensive and extensive we'll do it in the next lecture. Okay, thank you.